الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا. جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، قابل ذکر not exist، جب اس کا وجود ہی نہیں تھا. اب جب تک ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تک جو بندہ ابھی دنیا میں وجود میں نہیں آیا، جس کی برد نہ ہوئی ہو، جو ناقابل ذکر اس کا جو لمحہ ہے، اس مرحلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے تعبیر کیا، جو انسان کی اصل ہے. انسان دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا. پھر آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی ہے. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، انسان خود سے نہیں پیدا ہوا ہے. ویسے تو قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مراحل کا بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جو سب سے پہلے انسان ہم تمام کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد دنیا میں جتنے لوگ آئے سوائے عیسیٰ علیہ السلام سب ماں باپ کے ذریعے سے، اور حوا علیہ السلام کے جو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. باقی جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں دنیا میں وہ ماں اور باپ دونوں کے نطفے کے ملاپ سے، ملنے سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا، اتنا سمجھدار بنایا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن افسوس ہوتا ہے انسان کی اس عقل پر جو انسان کی دنیا میں سائنس کے بڑے سے بڑے مراحل کو طے کرنے کی بات کرتا ہے، آسمان پر کمندے ڈالنے کی بات کرتا ہے، چاند پر پہنچنے کی بات کرتا ہے، لیکن اپنی تخلیق کا انکار کرتا ہے. اس سے پہلے کوئی پانی کا کیڑا تھا، پھر اس کے بعد اس کے اندر بتدریج اضافہ ہوتا گیا، ترقی کرتا گیا، تب جا کے یہ انسان بنا. ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے من نطفۃ امشاج، ایک نطفے سے اللہ نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نطفے کے مراحل کا ذکر کیا. کیا تھا؟ مضغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، خون کا لوتھڑا تھا. پھر اس کے بعد گوشت، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت چڑھایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ شکل صورت، یہ بہترین شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. اور بالخصوص ہم سورہ 3 پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم، سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے. انسان کو اتنا اچھا بنایا. ہم دیکھیں دوسرے جانور ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں، ان تمام کی شکل صورت دیکھیں، ان کی غذا دیکھیں، ان کے رہنے سہنے کا انتظام دیکھیں، اور انسان کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عقل مند بنایا ہے، اس کی شکل کیسی بنائی ہے.
वलो बिल फर्ज, अगर ये नाक सामने के बजाय पीछे होती तो क्या होता? इंसान खा सकता, इंसान पी सकता। वो जो सेंसर अल्लाह तबारक व तआला ने यहां लगा रखा है, वो खाने से पहले ही उसको चेक कर लेता है ये चीज सही है, मेरे लायक है, खाने के मुताबिक है या नहीं है। ये अलग बात है कि हलाल और हराम का सेंसर लोगों का काम नहीं करता है, हलाल और हराम का सेंसर काम नहीं करता है, लेकिन अच्छे बुरे की तमीज कर लेता है। वो चीज सड़ गई है, गल गई है, बदबू आ रही है, सब महसूस कर लेता है। कान दो तरफ लगाए गए, इसी तरह अगर आंखों को दो तरफ लगा दिया जाता तो नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन पैदा किया है। इतना सब होने के बावजूद इंसान अपनी खिलकत का इनकार करता है, इंसान अपने खालिक का इनकार करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपने आप में गौर कर लो, यही काफी है। आज जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं ना, एथिस्ट लोग जो भी हैं और काफिर लोग जो भी हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ अपनी बॉडी में गौर कर लें तो समझ में आ जाएगा कि इस बॉडी को चलाने वाला कोई और है। इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। सुबह नींद में उठता है, फअहयाकुम, अल्लाह ने यहां कहा तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दी है। सुबह उठकर हम क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमको मौत देकर दोबारा जिंदा किया है। रात में हम जो सोते हैं, नींद जो लगती है, वो मौत की एक बहन है, मौत ही की एक छोटी किस्म है। जिंदा हो जाएं तो जिंदगी, मर जाएं तो फिर वो मौत, नींद ही हमेशा के लिए मौत बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमर में उसका तस्करा किया है कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। लोग इतना सब कुछ देखने के बावजूद नहीं मानते हैं। और बिलखुसूस, हालांकि ये सूरत मदनी सूरत है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 मरतबा मरने के बाद दोबारा उठाए जाने की लाइव मिसालें पेश की। 5 मरतबा 5 मकामात पर ऐसी मिसालें दी है कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा करता है, दुनिया में जिंदा करके बता दिया है। जो लोग इनकार करते हैं, मुशरिक तो इनकार करते हैं, काफिर तो इनकार करते हैं, जो लोग भी अल्लाह को नहीं मानते, वो सब इस बात पर मुत्तफक हैं कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होगा। दोबारा उसको कौन जिंदा करेगा? वो सड़ गल जाएगा, उसकी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, उसका गोश्त मिट्टी बन जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो कौन है जो उसको दोबारा जिंदा करे? मैं युहयिल इज़ाम वहिय रमीम, सूरह यासीन में अल्लाह ने कहा कि ये इंसान कहता है कि कौन है जो बोसीदा हड्डी को, जो चूरा चूरा हो जाए, उस हड्डी को फिर दोबारा कौन जिंदा करने वाला है? उल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, वही जात है जो उसको जिंदा करेगी जिसने उसको पहली मर्तबा पैदा किया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कहा सुम्मा युमीतुकुम, ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं इसके बाद मौत देगा, फिर उसके बाद सुम्मा युहयीकुम, फिर दोबारा जिंदा करेगा। अब ये दोबारा जिंदा करने का मामला, मुसलमानों में मेजॉरिटी मुसलमानों की इस बात को मानती है कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद उठाएगा। मालिक यौमिद्दीन में तफसील गुजर चुकी है कि फैसला होना है, जजा व सजा होना है। अगर इंसानों को ऐसे ही पैदा करके छोड़ दिया जाता, जालिम जुल्म करके चला गया, मजलूम जुल्म सह के चला गया, नेक अमल करने वाला नेकियां कर लिया, बुराइयां करने वाला बुराइयां कर लिया, तो फिर उनकी सजा और जजा का कोई मेयार होना चाहिए, कोई दिन होना चाहिए, कोई उनके लिए अच्छी चीज होनी चाहिए। अभी चंद दिन कबल हिंदुस्तान में 72 हूरों के ताल्लुक से एक फिल्म बनाने की कोशिश की गई, या बन गई पता नहीं। उस वक्त सड़कों पर न्यूज चैनल वाले मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पूछ रहे थे, हूरें कहां हैं, जन्नत कहां है। जन्नत और जहन्नम का इनकार किया जा रहा था, और कुछ नादान मुसलमान जो चंद टक्कों के लिए ऐसे न्यूज चैनलों के कैमरे के सामने आकर ये कह रहे थे नहीं जन्नत जहन्नम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब कुछ यही है। फिर जन्नत जहन्नम का क्यों जिक्र किया गया? तो उन्हें बस एक उम्मीद दिलाने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए। इससे कबल की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार करके रख दी गई है।
ऑलरेडी है, वो एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, उसका वजूद है। ऐसी सिर्फ खाम ख्याली बात नहीं है, डराने की बात नहीं है। जन्नत के बारे में भी कह दिया गया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तैयार करके रख दी गई है। ये जन्नत और जहन्नम दोनों चीजें मौजूद है। और एक मोमिन को ईमान ये रखना है, खौफ और तमा, डरते हुए अल्लाह के अजाब से और अल्लाह की रहमत की उम्मीद करते हुए जिंदगी गुजारना है। यहां मरने के बाद उठाए जाने का इनकार, जिसे दूसरे अल्फाज में बाथ बादल मौत कहा जाता है, मरने के बाद दोबारा अल्लाह तबारक व तआला उठाएगा। कैसे उठाएगा? एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने कई मिसालें अकली तौर पर दी है कुरान मजीद में। हम देखते हैं कभी बारिश नहीं होती है, मिट्टी सूख जाती है, दरख्त सूख जाते हैं, फसल नहीं होती है, कैद साली हो जाती है और गल्ले में कमी हो जाती है, और उस वक्त लोग दुआओं का एहतमाम करने के लिए कहते हैं। हत्ता कि ताज्जुब होगा, उस वक्त गैर मुस्लिम मुसलमानों के पास आकर कहते हैं दुआ करो बारिश के लिए, दुआ करो बारिश के लिए, तुम लोग दुआ करेंगे तो बारिश होगी। उनको यकीन है अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दा मरी हुई मिट्टी को बारिश के जरिए से युहयिल अर्द बअद मौतिहा, मिट्टी को मरने के बाद दोबारा जिंदा करता है। और इंसान किससे बना है? मिट्टी से ही बना है। तो इंसान को दोबारा जिंदा करना क्या मुश्किल है? उसकी 5 मिसालें इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। पहली मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जब लोगों ने तूर के पहाड़ी पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला को लाइव देखने का मुतालबा किया। क्या कहा? हम उस वक्त तक लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरा, जब तक हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं देख लेंगे। फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़ा, तो क्या हुआ? एक बिजली आई और उनको पकड़ा, जिसकी वजह से वो बिजली को अपनी आंखों के सामने देखते देखते चले गए। कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर कहा गया कि वो सब बेहोश हो गए। लेकिन यहां आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम, सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम, तुम्हें हमने दोबारा उठाया। बास का माना होता है मरने के बाद उठाना। हमने दोबारा उठाया कब? मिन बअदि मौतिकुम, तुम्हारे मर जाने के बाद, यानी तुम मर चुके थे, हमने दोबारा जिंदा किया। ये एक मिसाल यहां अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। दूसरी मिसाल, ये जो पूरी सूरतुल बकरा अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है? बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था। अब कातिल का पता नहीं चल रहा था, किसने कत्ल किया है, कौन कत्ल किया है, नहीं मालूम हो रहा था। कातिल को जानने के लिए जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, गाय ज़बा करने का हुक्म दिया गया। गाय ही क्यों ज़बा करने का हुक्म दिया गया? गाय का गोश्त काटकर उस मकतूल पर लगाया जाए तो वो मकतूल जिंदा होगा, वो उठकर बताएगा कि किसने कत्ल किया है, वो उठकर बताएगा कि किसने कत्ल किया है। अब यहां सवाल यह है कि इन्हें गाय ही ज़बा करने का हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वउशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, इनके अंदर बछड़े की मोहब्बत दिलों में घर कर गई थी। ये बछड़े से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, गाय को ये अपना खुदा मानते थे। कौन है ये कौन लोग हैं? बनी इसराइल के लोग हैं, शिर्क करने वाले लोग नहीं है, अल्लाह का इनकार करने वाले लोग नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। और ये लोग जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो किसने? सामरी ने एक गाय का बछड़ा बनाकर इनको बता दिया था, लो ये तुम्हारा रब है, ये आवाज भी करता है, बात भी आती है इससे। तो उसी दिन से इनके दिलों में उसकी मोहब्बत घर कर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उस अकीदे का रद्द करने के लिए, उसके तोड़ के लिए इनके लिए हुक्म दिया कि तुम गाय को ज़बा करो। चाहे तो कोई और परिंदा, कोई जानवर, कोई और चीज, कोई और तरीके से भी उसको जिंदा किया जा सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके अकीदे पर कारी ज़र्ब लगाने के लिए यह हुक्म दिया कि तुम गाय को ज़बा करो। और उसी से ये पूरी सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब वो गाय के तफसील है, सवालात हुए, ऐसी गाय होनी चाहिए, वैसी गाय होनी चाहिए, जो बनी इसराइल के सवालात हैं वो तो मशहूर हैं, लेकिन आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता,
अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को जिंदा करता है, मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। लाइव मिसाल बता दिया, वो मकतूल उठा, उठकर बताया फुला ने कत्ल किया, तो अल्लाह ताला साबित कर दिया कि इसी तरह मुर्दों को अल्लाह ताला उठाने वाला है। तीसरी मिसाल बारे नंबर 2 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम का तस्करा किया। अलम तर इलल लदीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी कौम का तस्करा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपने देखा नहीं, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त यहाँ देखने से मुराद आपको जानना चाहिए एक ऐसी कौम भी गुजरी है। कितने थे वो लोग? हजारों की तादाद में थे, उलूफ। बाज रिवायत में आता है कि 4000 थे, बाज रिवायत में आता है कि बेहिसाब थे, हजारों की तादाद में थे। वो निकल पड़े थे, खरजू मिन दियारिहिम, घरों को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? मौत के डर से, हज़रल मौत, हम यहां रहेंगे तो मर जाएंगे। क्यों भाई? ताउन की बीमारी, एक रिवायत में आता है कि ताउन की बीमारी फैल गई थी। ताउन से मुराद ऐसी बीमारी जिसका इलाज फिलफौर ना हो और बड़े पैमाने पर हलाकतें, तबाही मच जाए। जैसे हालिया चंद सालों कबल जो पैंडेमिक बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, अभी उसको जो ना वाज़े हो गया, एक्सपोज हो चुका है। वो जब उसी वक्त से लोग कहते आ रहे हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो जो कुछ हुआ वो आज सारी दुनिया की आंखों के सामने है। उस वक्त भी इसको ताउन करार देने की कोशिश की गई, ताउन कहा गया, उलमा ने खुतबात दिए, बयानात दिए, सब कुछ हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उन जालिमों के साथ हिसाब लेने वाला है जिन्होंने मासूमों का कत्ल किया, मासूम लोगों का कत्ल किया, लाखों लोगों का कत्ल किया। बहरहाल ताउन की बात चल रही थी। ताउन से बचने के लिए वो लोग घर छोड़कर निकल गए। जब घर छोड़कर निकल गए, बाज रिवायत में आता है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह करने से वो डर रहे थे। जिहाद में जाएंगे तो मारे जाएंगे, शहीद होंगे, मरना नहीं चाहते थे, इसलिए निकल पड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक मकाम पर पहुंचने के बाद खुले मैदान में ही मार दिया। कहा मुंह तू मर जाओ तुम सब लोग। सबके सब मर गए। एक नबी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा अल्लाह इन लोगों को जिंदा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने सुम्मा अहयाहुम, अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा किया। उन्हें बताया गया तुम मौत से बचकर कहां तक भागोगे? मौत तो आएगी, मौत ही नहीं आएगी बल्कि मौत के बाद उठाया भी जाएगा और हिसाब किताब भी होगा। और चौथी मिसाल उस आदमी की है जो अपने गधे को लेकर एक ऐसी कौम के पास से गुजर रहा था जो मर गए हैं, सालों हो गए। उसने कहा इन्हें कौन उठाएगा, इन्हें कौन जिंदा करेगा, इस कौम को कौन उठाएगा? अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हलाक कर दिया, उसको भी, उसके गधे को भी, उसको भी, उसके गधे को भी हलाक कर दिया अल्लाह तबारक व तआला। साथ में उसके टिफिन भी था, तोशा भी था उसके साथ। ये तीनों चीजें, वो भी था, उसका गधा भी था, उसका टिफिन भी था, ये तीनों चीजें साथ में हैं। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम सुम्मा बाद, 100 साल तक उसको मार दिया अल्लाह ताला। कितने साल? 100 साल तक। 100 साल के बाद फिर दोबारा जिंदा किया। दोबारा जिंदा होने के बाद उसे बताया गया देख फंदुर इला हिमारिक, अपने गधे की तरफ देख, गधे की क्या हालत बनी हुई है, सड़ गया है, गल गया है, बोसीदा हो गया है, लेकिन तुझे अल्लाह ताला ने जिंदा किया है, तुझे जिंदा किया है। और तू अपने खाने की तरफ देख, खाना कैसा फ्रेश। 100 साल हो गए, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसे भी खराब कर सकता है, लेकिन वो लम यतसन्ना, वो खाना पानी कुछ भी खराब नहीं हुआ, वो एकदम तरोताजा फ्रेश है। अल्लाह जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे मार दे और मरने के बाद दोबारा जिंदा करे। पांचवी मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा बंदे, अल्लाह के खलील, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें अपना जिगरी दोस्त बनाया, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मुशरिकाना माहौल में एक अल्लाह की तरफ, तौहीद की तरफ, फितरत के तकाजे को पूरा करते हुए तौहीद पर ईमान लाए और सारी कौम से लड़कर झगड़कर वहां से तकलीफें उठाकर, वो सारे एक लंबे मराहिल हैं। उनके बाद यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र मिलता है वो ये है, रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, परवरदिगार थोड़ा मुझे बता कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है।
क़ाल अवलम तुअमिन, अल्लाह ताला ने फरमाया क्या इब्राहिम तुम्हारा ईमान नहीं है क्या? मैं जिंदा करता हूं, क्या तुमको उस पर ईमान है या नहीं है? क़ाल बला, कहा कैसे नहीं है अल्लाह, वो तो ईमान है। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मेरे दिल को थोड़ा इत्मीनान मिल जाए, मेरे दिल के इत्मीनानी कैफियत में इजाफा हो जाए, ईमान में कोई जरा बराबर शक नहीं है कि अल्लाह तो जिंदा करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़ख़ुज़ अर्बअतन मिन अत-तैर, ठीक है 4 परिंदों को ले लो, चारों को ज़बा करो, चारों का गोश्त मिक्स करो, चारों को 4 जगह पर अलग अलग डाल दो, फिर उसके बाद उन्हें आवाज लगाओ, वदउहुन्न यअतीनका सअया, उन्हें आवाज लगाओ, वो सब तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे, उड़ते हुए तुम्हारे सामने आ जाएंगे। कैसे? सारा गोश्त मिक्स हो गया, उनको अलग अलग जगह डाल दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कैसे जिंदा करता है, वो फिर से मर्ज हो गए, फिर उसमें अल्लाह ने जान डाल दी, वो सब उड़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए। वालम, जान लो अल्लाह ताला इन तमाम चीजों पर कादिर है। यहाँ सवाल ये है कि हम में से बहुत से मुसलमान भी गैर शऊरी तौर पर अनजाने में या नादानी में या दुनिया की मोहब्बत में, माल की मोहब्बत में इस अकीदे के ऊपर उनका ईमान कमजोर होता जा रहा है कि मरने के बाद उठाया जाएगा, उठाकर हिसाब भी दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कहा सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तुम सबको अल्लाह के पास लौटाया जाएगा। क्यों लौटाया जाएगा? फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, दूसरे मकाम पर अल्लाह ने कहा तुम जो भी अमल कर रहे थे उसकी तुम्हें खबर अल्लाह तबारक व तआला देगा। तो ये इस सूरत के अंदर जहां मरने के बाद उठाए जाने का तस्करा है, वहीं ये बनी इसराइल के बहुत से अहम मामलात इस सूरत में जिक्र किए गए, उनमें से उनकी खसलत का जिक्र किया गया। वलन यतमन्नौहु, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि ये लोग मौत से हमेशा भागते हैं, मौत से भागते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। आज आप देखें सारी दुनिया को मारना चाहते हैं। कौन? ये यहूदी, ये ज्यूस सारी दुनिया को मारना चाहते हैं, सारी दुनिया के लोगों का कत्ल करना चाहते हैं, कत्ल करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से कत्ल कर रहे हैं, लेकिन कभी खुद नहीं मरना चाहेंगे। उनका एक आदमी मर गया तो पूरी दुनिया में हंगामा मचा देंगे, पूरी दुनिया में हंगामा मचा देंगे, लेकिन कितने हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं उसका उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। क्यों? ये लोग कभी मरना नहीं चाहते, लेकिन क्या इनकी ये चाहत पूरी होगी? क्या नहीं मरेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा भाग कर बताओ कहां तक भाग सकते हो, क़ुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भागने दे तो भाग नहीं सकते, वो मौत तो तुम्हें आकर रहने वाली है, पकड़ने ही वाली है तुम लोगों को। लेकिन ये लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इनका ये मानना है कि ये अल्लाह के बड़े चहीते हैं, ये अल्लाह के चहीते हैं, फेवरेट हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह की औलाद करार देते हैं अपने आप को। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर फरमाया वक़ालतिल यहूद वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। आज जो बच्चों के कत्ल की बात आ रही है, बच्चों को खा जाने की बात आ रही है सामने, आप देखें कैसे दरिंदे हैं ये लोग जो सारी दुनिया में इंसानियत का दर्ज बांटते हैं और यहां कत्ल करके खा जा रहे हैं और उनके उसका जरा बराबर शर्म तक नहीं है, एहसास अफसोस कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो कातिल हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं सब ऐसा? इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि दुनिया में ऐसे ही लोग बरतर रहे, ऊपर रहे जो यहूदी हैं, जो उनके मानने वाले हैं, और दूसरे सब लोग और बिलखुसूस मुसलमान उनके पहले नंबर पर दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, सबसे बड़े कट्टर दुश्मन मोमिनों के यहूदी है और मुशरिक, सबसे बड़े कट्टर दुश्मन है। यही वजह है कि सारी दुनिया से मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ उलझा कर, लड़ा कर, वेपन्स सप्लाई करके मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे को मरवा रहे हैं, कत्ल करवा रहे हैं, कत्ल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह क़यामत तक एक जमात हक पर बाकी रहेगी और इन लोगों का वो हशर होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई प्रेडिक्शन के तौर पर पहले ही दे चुके हैं। ये लोग जो मौत से भागना चाहते हैं और अपने आप को
को ये समझते हैं कि वो अल्लाह के बेटे या अल्लाह के चहीते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल फलिमा युअद्दिबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, तुम्हें अल्लाह ताला क्यों अज़ाब दे रहा है तुम्हारे गुनाहों की वजह से? तुम अल्लाह के बेटे और अल्लाह के चहीते नहीं हो, बल्कि तुम भी अल्लाह की मखलूक में से एक इंसान हो जिसे अल्लाह ने पैदा किया, तुम अलग नहीं हो। इन लोगों का क्या अकीदा है? यहूदी अपने अलावा सारी इंसानियत को यह समझते हैं कि वो इंसान ही नहीं है, जानवरों से गए गुजरे हैं, और ये कहते हैं कि ये इंसान की शक्ल में इसलिए बनाए गए ताकि हम इनसे ना डरें, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको इंसान बनाकर पैदा किया, हमारी खिदमत के लिए पैदा किया, हमारी गुलामी के लिए पैदा किया। मुख्तलिफ तरीके से इनके अकायद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके शर से हम तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। आखिरी बात, सूरतुल बकरा में दो बड़ी अहम आयतें हैं, एक है आयतुल कुर्सी और उसके बाद है आखिरी सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। इन दोनों की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से फरमाया, जो शख्स इसे हर नमाज के बाद पढ़े, नमाज के बाद पढ़ने के बाद उसे जन्नत में जाने से रोकने वाली चीज सिर्फ उसके लिए मौत, यानी नमाज के बाद अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ा और उसके बाद उसका इंतकाल हो जाए तो वो जन्नती है। हाँ, वो भी है कि वो शिर्क से पाक हो, वो गुनाहों से बचा हुआ हो, लेकिन यहां फजीलत बताना है। और ये वो आयतुल कुर्सी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में सोने से पहले पढ़ने का हुक्म दिया, जिससे अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करता है। और इसी तरह सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर सूरतुल फातिहा के साथ ही एक मखसूस दरवाजे को आसमान के खोलकर एक मखसूस फरिश्ते के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भेजा, उसे नाजिल किया गया था। उन आयतों को भी सोने से पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और इंसान की असलियत कि इंसान गुनाहों से जो ना बच नहीं सकता है, बस गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमेशा वो इस्तिग़फ़ार करता रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हर तरह के फितनों से, हर तरह के शुरूर से और हासिदों के हसद से और दुश्मनों की साजिशों से अल्लाह ताला महफूज रखे, ईमान पर हमें कायम रखे। जब तक अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे। जब हमारा खातिमा हो तो ईमान और इस्लाम पर अल्लाह तबारक व तआला हमारा खातिमा फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।